India Universe 2021. I am Dipti Chaudhary. I am a medico. I am a pediatrician and I come from Nasik. I am working in my field since 13 years and I am very much attached to my field, as well as I am very much honored by all the Persona team for giving me this wonderful award. As working with an NGO, I work with two NGOs in Nasik which work for underprivileged children as well as empowerment of women, because the empowerment of women and underprivileged children are the very big factor where our country lacks, and hence we should take these people ahead so as our country can develop in a proper sector. And I am going to represent this title ahead in internationally by the end of December, and I promise to take this title ahead to various countries so that I can continue my work in the empowerment of the women, and as well as working for the children. Not only the underprivileged, but all the children should be getting good food, good quality of love from their parents, and good nourishment and good education, so that they build up into a very good future candidates is very necessary. Thank you. Thank you so much. Okay, fine. I am Mrs. Archana Dikshit, winner of Persona Quarantine Mrs. India Asia Pacific. And I am really thankful that I have won this award today. I have got to know about this, one of my friend. And anything would you like to ask about that? मैम, ये कैसा लग रहा है आपको? आज आप मतलब विनर हुए, तो किस तरीके का आपको फील हो रहा है, किस तरीके का आपको आज ये लग रहा है? थोड़ा बताइए। मुझे ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए आई एम सो एक्साइटेड. इवन आई मीन थ्रू आउट द डे आई केप्ट ट्रबलिंग मिसेस प्रियंका कि ये कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है. आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अवार्ड, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई एम रियली थैंकफुल टू एंड इवन ऑल ऑफ यू फॉर दिस. मैम, कितना डिफरेंट होता है कि जैसे एक फैमिली को लेके चलना, प्लस इस पे एक फोकस करना, तो उसके बारे में कुछ बताइए किस तरीके से आपने पूरा फोकस किया और आज येस, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस. मैं बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ. पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि बीइंग अ मैरिड वूमन इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि घर में भी काम करना है, घर के काम होते हैं, प्लस सोशल वर्क. आई एम डूइंग अ सोशल वर्क एज वेल. आई एम वर्किंग फॉर नेवल वाइज वेलफेयर एसोसिएशन, तो वो भी मैं कर रही हूँ. और मुझे लग रहा था पता नहीं शायद ये मैं ना कर पाऊँ मेरी लाइफ में, बट when I participated in this pageant, it has completely changed my personality. भले ही मेकअप हो या वॉकिंग टिप्स हो या इवन स्पीकिंग स्किल्स, एवरीथिंग हैज चेंज्ड इनटू मी. परसोना से जुड़ के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि मैंने ये पैजेंट में जब से हिस्सा लिया है तब से आई गॉट कनेक्टेड टू ऑल दीज पीपल. दे आर वेरी फ्रेंडली एंड बहुत ही हम्बल है. वॉट एवर यू आस्क देम, they are always ready to answer you. So it's really nice getting connected to Persona, all the team, I should say. तुम क्या मैसेज देना चाहेंगी जो घर में मिसेज होती है, जिनका कुछ इच्छाएं होती है कि हम भी ऐसा करें बट फिर भी वो नहीं कर पाते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? ये मैं नाइस सवाल है आपका. मैं ये कहना चाहती हूँ, हर लेडी ने अपने आप को कहीं ना कहीं जाके प्रूव करने का एक इच्छा होती है हर लेडी में. तो एंड शी ऑलवेज थिंक्स कि मैं क्या करूँगी और मैं आगे जा पाऊँगी, मेरा अपना खुद का नाम कमाऊँगी. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट ट्राई, पार्टिसिपेट वेर एवर यू वॉन्ट टू. ऐसे नहीं है कि एक ही इसमें ले सकते हो. देयर आर सो मेनी एवेन्यूज दीज days. Persona, definitely I will vouch for it because I know this team very well. So I would like to tell all the ladies, especially जो गृहिणी हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें हिस्सा लीजिएगा. And I am sure आपका जो personality है, grooming है, it will change you for the entire life. So be part of it and come ahead, or it shows our woman empowerment. So all of you women, are you ready? Very good. Thank you so much. Sure. Yeah, hi everyone. So my name is Isha Sharma and I'm from Mumbai. I've been chosen as, and have won this pageant as Persona Quarantine Mrs. India Women of Universe 2021.
मैम कैसा लग रहा है आज आपको पर्सोना मिस इंडिया जब तक आपको मिला है Sure. इससे आप जुड़े हो तो इसके बारे में कुछ आप जरा डेफिनेटली सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम डेफिनेटली एंड एक्साइटेड एंड इट्स एक्चुअली अ विवेशियस अ मिरेकुलस मूवमेंट फॉर मी because this is something that I have been thinking since my childhood that would I be able to participate, would I be getting that opportunity or not. But yes, thanks to Persona, they have given me this platform to be as an empowered woman, to push myself, to stand up for every woman. So yeah, it's all because of Persona and I'm really thankful for that. Thank you. कितना मुश्किल होता है कि फैमिली को लेके चलना उसके ऊपर फोकस करना तो कितना आपको मतलब इसमें Yeah, लगा या Yeah, sure. So basically, I think definitely it's really difficult, to manage your family, to manage your work, to manage your passion. But I think it's all about time management. That's what I have always believed. It's all about time management. It's your willpower. And if you truly, truly passionate about something, I think you are definitely gonna go for it, and definitely you're gonna go and achieve something. Doesn't matter if you are going to get fail or something like that, but for sure it's your time management, your willpower. So that is the thing that goes way ahead along with your determination. So yeah, it's definitely challenging, but if you have a full support from your family, from your husband, then I think the journey is pretty much easy. Yeah, so that's what I think. क्या कहना है उनके भी क्या मैसेज रहेगा आपको जो आपको जो लेडीज हाँ. जिनको ऐसा करना होता है जो घर में बदली तो उनके लिए आपका मैसेज है सो मेरी साइड से सारी लेडीज़ के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है दैट बिकॉज आई हैव सीन अराउंड माई सर्कल सेइंग दैट अभी तो शादी हो गई है, लेट्स नॉट गो अहेड, अभी तो काम करना है, बच्चों को संभालना है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम एवरीवन अराउंड माई सर्कल. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गर्ल्स, आई थिंक वी जस्ट ओनली गेट वन लाइफ, राइट. हमें ज़िंदगी सिर्फ एक ही मिलती है. सो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है. जो भी करना है इसी लाइफ में करना है. डजेंट मैटर वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू गो आउट एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. सो आई वुड से हार नहीं माननी चाहिए. सपोर्ट मिले बहुत अच्छी बातें, नहीं मिले देन यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. यू हैव टू मेक देम सी दैट यस, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ है. सो डेफिनेटली आई एम गोना से गर्ल्स, लेडीज, जस्ट गो फॉर इट, डोंट गेट अफ्रेड. एंड एब्सोल्युटली आई थिंक this is a very good platform, so I would say just come and participate, and for sure your dreams are going to get a good flight. So yeah, go for it. Thank you. Thank you. Shekhawat. I'm from Nagpur. I am the winner of the Persona Quarantine Mrs. India International 2021. Okay. क्या कहना चाहिए कि आपने कैसी शुरुआत की थी, कैसे आपको मिला ट्रेनिंग का? एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड सर्किल में मिसेस नेहा ने मुझे जब इस इवेंट के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इवेंट मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बिकॉज आई एम राजपूत फैमिली से हूँ मैं. तो राजपूत फैमिली में जैसा कि पता है कि आपको कि बिल्कुल घूंघट में रहती है लेडीज़ और स्टेज पे आने का उनको मौका नहीं दिया जाता है. तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रियंका ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और ये मेरे लिए बहुत हैप्पीस्ट मोमेंट है. और मैं अपनी कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं उनको एक ये संदेश देना चाहूँगी कि खाली घूंघट में ना रहें, अपने आप को प्रूव करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं कि आप सब कुछ कर सकती हैं. और बस मैं खुश हूँ. जो लड़कियाँ जैसे आपने कहा राजपूत से घूंघट में रहती है, जो लड़कियाँ और भी लड़कियाँ जैसे भाई ने पहले पूछा मैडम को, लड़कियाँ जो आना चाहती है फील्ड में, उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को हमेशा फुल कॉन्फिडेंट रखें, किसी से कम ना समझें और अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. और मैं अपने लिए कहना चाहूँगी कि आसमानों से कह दो कि अपनी उड़ान थोड़ी ऊंची कर ले क्योंकि मेरी उड़ान थोड़ी बाकी है. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच. नागपुर से पर्सनल में कैसे आपने इंटरेस्ट लिया, कैसे कुछ किया था, उसका जर्नी के बारे में बताइए. जी, मेरे को पर्सोना के बारे में पता चला. मेरे एक फ्रेंड है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है. बिकॉज़ पर्सोना के लिए प्रियंका मैडम और करण सर आ चुके थे नासिक. इससे पहले भी उनके 2 सीजन्स हो चुके थे. एंड सो आई गॉट इंटरेस्टेड एंड इसलिए मैंने पर्सोना में अपना नाम दर्ज किया और इसमें सक्सेस पाई. जैसे हमने मुझे पूछा कि और इनका तो बाइट रही है बाइट करते हैं, आपने कहा ना बाइट करते रखिए. सबसे नाम किया आपका. चलिए
आप कर लो भाई। अब उधर काम करे बस ना उधर काम करे बैठी ना आप बैठी ना आप दो पाँच है सर आप पूछ लो सर चलेगा ये बिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना। मैं प्रियंका बैनर्जी, मैं मिसेस यूनिवर्स 2017 रह चुकी हूँ और हम पिछले 2 साल से शीक मिसेस इंडिया कर रहे हैं। बट ये साल हमने शीक मिसेस इंडिया का नाम चेंज करके परसोना क्वारंटीन मिसेस इंडिया कर चुके हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, सब कुछ बदल रहा है, तो हम नाम भी बदल दें। तो हमने शीक से परसोना कर दिया है। और क्वारंटीन इसलिए क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये जो हमारा पैजेंट हमेशा लाइव होता था, इस बार हमने ऑनलाइन किया है, तो इसलिए उसका नाम हमने क्वारंटीन रख दिया है। बट ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन सब अच्छी रही और सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम अगले साल वापस इसे परसोना मिसेस इंडिया लाइव, जहाँ पे सब कुछ स्टेज में सब होगा, तो इसे हम वापस रिपीट वैसे कर लेंगे। तो फिर ये 4 नाम से बातचीत कहीं नासिक चाहिए कहीं नागपुर चाहिए, कैसे इनका चयन हुआ? ऑनलाइन कैसे चयन किया आपने, कैसे इनके किया सब ऑनलाइन कैसे हुआ? ओके, ये हमारे ऑनलाइन ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस के थ्रू आए थे। हमारे सारे चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग्स भेजी थी, जिनके वीडियो क्लिप से हमने इनको ऑनलाइन सिलेक्ट किया है और उस हिसाब से हमने उनकी सारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही की है। हमारे सारे फैकल्टीज़ ने अपने हर दिन के 2-2 घंटे दिए हैं। जो हम आमने सामने उनको ट्रेनिंग करते थे वो हमने अपने जूम ऐप में ट्रेनिंग की है। सो उस बेसिस पे हमने अपना जूम ऐप में ही फिनाले किया है और जजेस ने भी अपने सारे टाइमिंग के हिसाब से हमने वो फिनाले किया है और हमने विनर्स डिस्क्लोज़ किया है। कहीं एंट्री आई होगी मैम, एंट्री आई है? हमारी एंट्रीज़ बहुत आई थी इस टाइम, बिकॉज सबको मालूम था ऑनलाइन है। यूजुअली ऐसे होता है कि जब हम मिसेस इंडिया करते हैं तो सबके टाइमिंग्स बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, बिकॉज सबकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ऑफिस होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको प्लस पॉइंट थी कि सबको घर पे बैठ के ट्रेनिंग लेनी थी, किसी को ट्रैवल नहीं करना था, किसी को अपने बच्चे को छोड़ के या हस्बैंड को छोड़ के या काम को छोड़ के नहीं आना था। तो ऑब्वियसली लाइफ के मुताबिक ये वाली चीज़, ऑनलाइन वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। महाराष्ट्र औरतें आजकल आगे आ रही है, गाँव वहाँ की औरतें चाहती आने के लिए, उसको आप क्या संदेश दें, क्या कहेंगे, कैसे उनको ले जाए तो मिलेगा? हमने जब शीक चालू किया था, जो कि अब की परसोना हो गया है, हमने ये इवेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के औरतों के लिए स्पेशली चालू नहीं किया था। हमने एक्चुअली ये चालू किया था छोटे टाउन्स और छोटे सिटीज़ के औरतों के लिए, जिनको वो छोटी शहरों से आगे बढ़ना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली में आना है, मीडिया में आना है, तो उनके पास कोई लिंक नहीं होता है, उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है। किस डायरेक्टर से मिलना है, किस प्रोडक्शन कंपनी से मिलना है, फ़ोटोशूट्स कैसे होते हैं, पोर्टफोलियोज़ कैसे दिए जाते हैं, तो और ग्रूमिंग में क्या क्या लगता है, तो उनको ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं थी। तो ये मीडियम से, ये पैजेंट के मीडियम से हम उनको वो ग्रूम करके उनको एक्चुअल प्लेटफॉर्म देना चाहते थे इस इंडस्ट्री के लिए। तो बेसिकली हमारा ये पैजेंट छोटे शहरों की औरतों के लिए ही बेसिकली बिल्डअप था। आपसे जुड़ना हो या जिसको आपसे आना हो, कैसे आ सकते हैं? हमारा यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो अभी शीक मिसेस इंडिया है, हमारा वेबसाइट भी है जो हम बहुत ही जल्दी शीक से परसोना में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है, त्रिम्बक राज एंटरटेनमेंट, जहाँ पे हम अपने सारे विनर्स को ऑडिशंस के लिए भेजते हैं। वो ऑडिशंस में कैसे करते हैं वो उनका टैलेंट के ऊपर वो होता है, बट हमारा है कि हम उनको डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म, एक मीडियम में भेज देते हैं विदाउट एनी हैसल, और जो भी उनको उस चीज़ के लिए ग्रूमिंग रिक्वायर्ड होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। आखिर में क्या मैसेज देंगी खासकर महिलाओं को? मैं यही बोलूँगी कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे कि औरतें, बेटियां भी होती है, बीवी भी होती है, माँ भी होती है, बहनें भी होती है। जब औरतें बेटियां होती है तो वो अपने डैडी पे निर्भर होते हैं, जब वो शादी करके जाते हैं तो वो अपने पति पे निर्भर होते हैं। बट मेरे ख्याल से आप कोई भी स्टेज के लाइफ में रहो, आप बेटी हो, बीवी हो, ननंद हो या सास हो, आपको हर टाइम अपने पैरों पे खड़ा रहना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंसी, सेल्फ इंडिपेंडेंसी एक औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको ये नहीं पता कब क्या आपके लाइफ में हो जाए, और आप किसी पे अगर निर्भर रहो वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आत्मनिर्भर, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंसी हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू। मोदी की बात करिए है ना, मोदी की बात कही आपने आपने बस अच्छा इसका वेरीफाई क्या जो इंट्रोड्यूस करना Yes, hi guys. My name is John Lucas. I'm from South Africa and I've been coming to India for 6 years. And yeah, it's an absolute blessing to be here. I'm actually, I was here to release the movie Opogaru, which is a South movie in Karnataka. And now I'm going to be staying here for the next year. How was today's event? The event was awesome. You know, it's great to support an NGO. I always wanted to do that here in India. So absolutely blessed to be here. Thank you. All right. Good. Thank you guys. या सर हाय दिस इज़ करण खंडेलवाल और मैं एक्टर हूँ। मेरा शो आता है दंगल चैनल पे। शो का नाम है रंजू की बेटियाँ। सो अभी अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। दंगल चैनल पे 9:30 बजे आता है। करते थे वो जीवन भारत संघ द्वारा अवार्ड आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अवार्ड या काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आज मुझे ये अवार्ड मिला तो बड़ी ऑब्वियसली कि अवार्ड मिलता तो अच्छा ही फील होता है। सो आई एम फीलिंग रियली गुड। और रही बात इन एनजीओ की तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रही बात करण सिंह की तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है अपनी लाइफ में एंड ही इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। सो आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर हिम। बीइंग एक्टर एक अवार्ड कितना मान्य रखता है आपके लिए? अवार्ड बीइंग एन एक्टर ये हमारे लिए मुझे लगता है कि पैसे शोहरत इन सबसे ज़्यादा होता है अवार्ड, क्योंकि ये हमें मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है अवार्ड मिलना। ओबियसली कि क्या बताऊँ मैं अवार्ड के बारे में। ये बहुत अच्छा फील होता है। इट्स ए वेरी गुड फीलिंग। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, नेक्स्ट आने वाला वगैरह? ऑडियंस को तो पहले तो ये कहूँगा कि मेरा शो ज़रूर देखिएगा और मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली थी मिराज MX प्लेयर पे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं। मैं यंग जनरेशन के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने भी काफ़ी हल्के में लिया था पर जब मेरे सगे भाई को कोरोना हुआ तो उसके बाद मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं यार कोरोना है। वैक्सीन वगैरह सब आ चुकी है, फिर भी तब तक ये पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हो जाता। आप प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, काम वगैरह मत छोड़िए, सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, और वो सब बहुत ज़रूरी है बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुझे अवार्ड फंक्शन के बारे में सबसे पहले तो मैं इस एनजीओ को, जो जीवन धारा एनजीओ है, इस संघ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, जो इतने टाइम से इस संघ को चला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3rd अवार्ड है उनका और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एक फिल्म रत्न से मुझे नवाजा गया है। बाकी सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। दुनिया भर के अलग अलग जगह के रत्न आए हुए थे यहाँ पे, जो कई फील्ड से डिफरेंट फील्ड से थे और उन सब लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एनजीओ है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनके कामों के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग में पता चला था कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जो है वो कहते हैं ना कि जन सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीइंग एन एक्ट्रेस एक अवार्ड आपके लिए कितनी मायने रखता है? आप समझ सकते हैं कि बीइंग एन एक्ट्रेस एक अवार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इस अवार्ड के लिए ही मरते हैं और इस अवार्ड के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात भूखे प्यासे काम भी करते हैं ताकि हमारे लिए अवार्ड मिले। ये अवार्ड हमारे लिए एक तरीके का फ्यूल है। क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है? इंडस्ट्री में अभी मैं 2-3 फिल्में मैंने साइन की हैं हाल ही में, जिसमें एक हिंदी फिल्म है, एक पंजाबी फिल्म है और बहुत जल्दी ही मैं इन दोनों की शूट पे निकलने वाली हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, केसरी जी सुना होगा आपने, क्या कहना चाहिए, क्या था पूरा मामला? बहुत अच्छे को स्टार है मेरे, उनके साथ मैंने एक हिट फिल्म की है होगी प्यार की जीत और मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, उसके व्यूअर्स बढ़ चुके हैं। और हमारा एक सॉन्ग था होठ लाली से रोटी बोल के, वो तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा कहना क्या है, बहुत अच्छे हैं दिल के। उनका ये पूछने मतलब कि काजल राघवानी और केसरी की बिल्कुल चल रहा है,
मामला उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक लड़की ने काफी बवाल किया है पेयर को लेकर कि बॉलीवुड में ही पेयर चलते हैं, नाम जोड़ा जाता है, चाहे वो राजेश खन्ना का हो किसी का भी हो, लेकिन भोजपुर में नाम जोड़ने चालू हो गए हैं। एक लड़की ने बहुत बड़ा खुलासा किया, यूपी की लड़की है, कि बाहर वालों को काम नहीं मिलेगा, वो सिर्फ केसारी के साथ फिल्में करेंगे, केसारी उसके साथ फिल्में करेंगे, नहीं ऐसा तो कुछ काजल के नहीं साथ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी इस इंडस्ट्री में बाहर से आई हूँ, मेरी कोई पेयरिंग नहीं रही आज तक। शायद ही कोई स्टार रहा होगा, मनोज तिवारी जी से लेके अभी तक के कल्लू तक सभी लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो मेरा कोई पेयरिंग बन के मैं नहीं आई थी कि मैं किसी के साथ पेयरिंग में थी तो फिर मेरे को काम मिला। पेयरिंग बनने लगी है नो डाउट, और मेरे ख्याल से ये ऑडियंस और आप लोग का कमाल है कि जो आप लोग पेयरिंग को इतना हाइप करते हैं और पेयरिंग को पसंद करते हैं, और ऑडियंस पसंद करती होगी शायद पेयरिंग को, तो वो हो सकता है। काजल में एटीट्यूड आ चुका है, मानते हो इस बात को? काजल को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं, आई हुई लड़की को इतना एटीट्यूड आ जाता है, वो भागती है, मीडिया से भागती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, कि सारी बड़ी फिल्में होगी तो आप मीडिया को इंटरव्यू देगी, नहीं तो नहीं। एक्चुअली काजल के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए कमेंट्स नहीं कर सकती बिकॉज काजल को मैं पर्सनली ज़्यादा जानती नहीं हूँ, और उन लोग की क्या रिलेशन आपस में रहे हैं तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। जितना मैं मीडिया में देख रही हूँ, जितना इंडस्ट्री में गॉसिपिंग चलती है, सिर्फ उतना ही पता है कि कुछ चल रहा है। मुझे लगता है उन लोग का पर्सनल मैटर है, और वो किस तरीके से एक दूसरे को मीडिया में उछाल रहे हैं, उन्हें सॉर्ट करना चाहिए आपस में। थैंक यू। बहुत गर्मी है यार। जी मैम, जरा अपने बारे में बताइए ना, आपका नाम बताइए आपके बारे में। जी मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी। रूपा जी मैम, आप इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज जो अवार्ड मिला है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली खड़ा कर दो, कोई नहीं। अच्छा उधर साहिल जी आपसे मिलने आए थे क्या? हाँ साहिल जी आपसे मिलने आए थे? हाँ जी। या जी मैम चलिए। जी जीवन धारा ने ये जो अवार्ड फंक्शन रखा है, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम है, क्योंकि मैं गोविंद पांडे जी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं, और वर्षा कुलकर्णी जी हैं, वो उनका साथ दे रही है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जीवन धारा की। तो जीवन धारा आज जिस तरीके से कोविड के समय में जो अच्छा उपक्रम किया है उसने, वो बहुत ही अच्छा उपक्रम मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि जीवन धारा एक अपने इसमें एक बड़ी एनजीओ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कम समय में बहुत ज़्यादा काम किया है। और मुझे क्या समझ देंगी जो आज की जो औरतें, जो महिलाएं हैं, जो काफ़ी घर पे बैठी है, जो डरती है बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए, उनको क्या समझ देंगे? एडवोकेट आप क्या समझ देंगे? आपने जैसे पूछा कि महिलाओं के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी जो घर पे बैठी है, सो मैं भी एक महिला ही हूँ और एक एडवोकेट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आज किसी को घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि हम चलेंगे, एंड तक चलेंगे। ट्रॉफी पे विवेकानंद जी नजर आ रहे हैं, क्या कहना है विवेकानंद जी के बारे में? आपकी क्या धारणा है विवेकानंद जी? अब विवेकानंद जी के अगर बारे में कहा जाए तो मैं बहुत छोटी हूँ, उनके बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महान हस्ती है कि उन्होंने बहुत ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि हम सभी को उनके बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे जो ट्रॉफ़ी मिली है उसके ऊपर उनकी छवि होना, वो मैं अपने लिए गर्व की बात महसूस करूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। हम एक बार यहाँ आइए, ट्रॉफी लेके दे। मैं पूछूँगा उर्दू में। जल्दी करो। चलिए मैम, आपका नाम बताइए मुझे। मेरा नाम नलिनी जैन है, और एक्चुअली मुझे गोविंद सिंह जी ने इधर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया था, और इनका जो प्रोग्राम देख के इतना अच्छा लगा कि लाइफ में इन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है कि ये लोग बहुत एनजीओ सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा करते हैं। और कुछ आपने मैम कितने लोगों को अवार्ड दिया? आपने किस तरह की जो आया कि यहाँ पे उनको जो अवार्ड दिया आपने बताइए। मैंने 2 लोगों को दिया है। और आप अपने बारे में क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, उसके बारे में बताइए। सर मैं बहुत सारी एनजीओ से जुड़ी हूँ,
और ब्यूटी पेजेंट में मैं विनर भी रह चुकी हूँ। और अभी लाइफ में बोले ना बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अभी तो शुरुआत है। बस आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए कि कुछ आगे करूँ, अच्छा करूँ। क्या क्या सोचा आपने, क्या करना है आगे? आगे की प्लानिंग ये है कि मैं सोशल वर्क और एनजीओ में जुड़ी रहूँ। ये मैं सोचती हूँ कि कुछ लोगों के लिए कुछ करूँ। तो कोरोना काल में कितने लोगों की मदद की आपने? बहुत से मदद की हम। एक्टिव रही मैं, मीरा रोड महेंद्र में एक्टिव रही हूँ मैं। लेकिन ये वाली बातें होती है कि आप ये करो तो बताओ मत, कुछ करके बताना है। और आगे तो अभी शुरुआत है, बस आप लोग साथ में और बड़े बड़े लोग भी साथ में हैं, मेरे साथ में कुछ करना है। थैंक यू सर। अब क्या हुआ? अब क्या सर क्या कहना चाहेंगे, जीवन धारा संघ एनजीओ का अवार्ड फंक्शन था, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जीवन धारा संघ का कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया। और जो लोग हमारे कोरोना के काल में जिन लोगों ने लोगों की सेवा की, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, आम नागरिक, जिन जिन लोगों ने भी मुंबई में आसपास में सब जगह लोगों की सेवा की, उनको उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया। तो मैं इनको मुबारकबादी पेश करूंगा, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और एक अच्छी पहल इन्होंने शुरू की। ऐसा होना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, लोग प्रोत्साहित होते हैं, उससे आगे काम होता है। तो मैं अपनी जानिब से करण सिंह है, उनकी टीम है, डूबे जी है, सब तमाम जो भी जीवन धारा संघ के एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे एक ऐसे कार्य में इन्होंने बुलाया, ऐसे कार्य में मुझे ज्वाइन किया कि जिसका मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो एक वाकई में मानवता के लिए एक बहुत अच्छा आंसर है कि आप आगे आइए, लोगों के लिए काम करिए, आपको सम्मानित किया जाता है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, अच्छी चीज़ होती है। सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एनजीओस हैं, बट जिनका जो वर्क है, उनका जो काम करने का तरीका बहुत अलग है। साथ में गोविंद जी हैं सर, करण सिंह पुरुष जी हैं साथ में। सर इस रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का इनका वर्क है और किस तरह लोगों की हेल्प करते हैं? देखिए, गोविंद जी, करण सिंह, तमाम जो पूरी टीम साथ में जुड़ी हुई है, सबका काम काबिल तारीफ़, बहुत काबिल तारीफ़, क्योंकि ये लोग खुद के स्वार्थ के बिना लोगों की हेल्प करते हैं। ये लोगों ने उन लोगों को अवार्ड दिया जो वाकई में इस अवार्ड के काबिल है। इन्होंने देखा कि इसने बिल्कुल काम किया, कि मानवता, हर इंसान ने काम किया, आपने, मैंने, हम सब ने काम किया, मगर कुछ लोगों ने अपना सब कुछ लुटा कर भी लोगों की खिदमत की, ये भी देखा गया। तो ऐसे कुछ लोगों को सेलेक्ट करके सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है ना, कि दूसरे लोग भी देखते हैं कि हमको भी करना चाहिए, आगे आते हैं काम के लिए, बढ़त होती है, एक साथ मिल के बढ़ते हैं आगे। तो मानवता के प्रति एक बहुत अच्छा संदेश। और हमारा भारत देश तो महान देश, हम लोग सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म में विश्वास रखते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती की तहजीब का प्रतीक है भारत, जहाँ पे हम सब मिलकर एक दूसरे का त्यौहार बनाते हैं। और यहाँ पर भी देखा ये गया है कि जात पात कुछ देखे बिना सब ने सब लोगों की पूरी तरह से मदद की, कोई रिलीजियस बैरियर नहीं देखा, सबके घर जा के सब ने मिल के सबकी मदद की, सबका काम किया। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज सब तरफ जाएगा, ग्लोबली भी जा रहा है मैसेज, देश भर में मैसेज जा रहा है कि जब हम सब एक होते हैं तो एक अच्छा काम होता है। तो मैं इनका हौसला बढ़ाऊंगा और कहूँगा कि मेरे लायक कहीं भी काम हो पूरी टीम को, संघ को, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ ऐसे कार्य के लिए। सर राजा का एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जो पिटीशन डाले हैं कोर्ट में, उस पर क्या कहना है आपका? ये मौका तो नहीं है उस इंसान का नाम लेने का, उसको तो हम लोग फिरौन, मरदूत की औलाद ऐसे नाम से जानते हैं, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। वो चीप पब्लिसिटी के लिए उसने ऐसी बातें कही जिसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैं तो हर डिबेट में टीवी चैनल्स पे सब में खंडन कर चुका हूँ। उसके सगे भाई ने खंडन किया कि इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। कि देखिए आप, कुरान एक चीज़ ऐसी है जो डिवाइन होली किताब है, जो अल्लाह ने नाजिल की, और पूरे देश दुनिया के मुसलमान उसको पढ़ते हैं, उस पर यकीन है, अकीदा है। तो उसका एक ज़ेर ज़बर भी आप चेंज नहीं कर सकते, और वो 26 वर्ष चेंज करने की अगर बात करता है तो बिल्कुल गलत है। मगर मेरा दूसरा बात ये भी है, मैंने लोगों को पैगाम ये भी पहुंचाया है कि जो लोग बोलते हैं उसका गला काट डालेंगे, कत्ल कर देंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, कायदे कानून पर यकीन रखिए। वायलेंस का किसी भी रीत से हमारे इसमें नहीं होना चाहिए काम, नॉन वायलेंस से काम करिए। जो भी उसके खिलाफ सैकड़ों FIR हो चुके पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में।
अब पुलिस एक्शन लेना चाहिए और वसीम रिजवी जैसे पागल इंसान की जगह या तो एक मेंटल असाइलम है या जेल में, तो उसको जेल में डालो। मगर मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई भी वायलेंट चीज़ इख्तियार नहीं करे, कायदा कानून पर यकीन करे, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, फॉलो संविधान। भाई सर, इन दिनों काफ़ी देख रहे कोविड कोरोना बढ़ चुके हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है, खाली कहती है मास्क पहनो, ये करो। ये सरकार की तो बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है, साथ साथ में हम नागरिकों की भी जवाबदारी बनती है कि हम मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और जो भी प्रोटेक्शन है SOPs आती है सरकार की तरफ से उसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। वरना देखिए आप सेकेंड फेज ऑफ कोरोना फैल रहा है लोगों के बीच सब तरफ और काफ़ी जगहों के ऊपर तो लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो मैं तो आपके माध्यम से लोगों से यही विनती करूंगा कि आप प्लीज़ वेयर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलो द SOP ऑफ द गवर्नमेंट, यूज सैनिटाइजर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? जीवन धारा संघ द्वारा अवार्ड किया गया है, आपको भी समझ किया गया है, बताएंगे। अच्छा, एक बोलिए अपने आप को। मेरा नाम हेलन फंसेका है और मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ मुंबई 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर CWC 2। ये अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में मुझे एक और नारी सम्मान का अवार्ड मिला था। ये महीने मुझे 5 अवार्ड्स मिले हैं और मैं सच्ची अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। शायद इसलिए कि मैं सोसाइटी में काम बहुत करती हूँ, जीवन धारा संघ NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ। जीवन धारा NGO को संग लेके मैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो बीमार रहते हैं और जिनको ज़रूरत रहती है एजुकेशन की, और मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ में कि जहाँ पे भी मैं बच्चों के लिए इनजस्टिस देखती हूँ, क्योंकि मैं उधर वैसे एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे हूँ और मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि आजकल जो होता है रेप, चोरी, पॉस्को, ये सब इतना हो रहा है। तो अभी मेरा ये लक्ष्य हो गया है कि वहाँ से हटने के बाद मैं खाली सोसाइटी में चेंजेस लाऊं, एक अवेयरनेस लाऊं, जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को जीने का तरीका सिखाऊं, क्या गलत है क्या सही है। स्पेशली छोटे बच्चों में राइट टच रॉन्ग टच बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो समझ में नहीं आता है और इसीलिए बहुत सारे जो बोलते गुनाह होते हैं और बच्चे फंसते हैं। तो ये मैं एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि ऐसे गुनाह ना हो, हमारे बच्चे बचे, चाहे वो छोटे लड़के हों या वो लड़कियां हों। और जीवन धारा संघ को एक बार वापस तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वापस से एक अवार्ड दिया। एंड थैंक यू टू ऑल यू मीडिया पीपल, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आप समाज सेवी का भी हो, आजकल लोग देख रहे हो बाहर में मास्क नहीं पहनते, कोविड चल रहा है पाकिस्तान में, यस, उनको क्या सलाह देंगे आप? नहीं, मास्क पहनना तो बस ज़रूरी है। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ इसीलिए मैंने नहीं पहना है, मैं तो बात नहीं कर पाऊँगी, बट मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो वायरस हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। और खुद की अवेयरनेस के लिए, खुद के बचाव के लिए और हमारी फैमिली की सुरक्षा के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मास्क पहनिए, अपना हाथ सैनिटाइज़ करिए। और अगर आपने किसी को देखा कि उन्होंने मास्क नहीं पहना है, ज़रूर पहनिए। जब मैं ट्रैवल करती हूँ, जब भी मैं कोर्ट जाती हूँ डोंगरी उमरखड़ी में, मैं लोगों को थूकते हुए देखती हूँ या रिक्शे वालों को थूकते हुए देखती हूँ या कार में उन लोग थूकेंगे या बाइक पे थूकते हैं, मैं सीधे उनको ऐसे करती हूँ, क्या बात है, क्यों थूक रहे हो? और गवर्नमेंट ने मना किया है थूकने के लिए, मगर बहुत लोग सॉरी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं तो क्या हो गया, हिंदुस्तान है। बट ये गलत है, हमारी ये सोच गलत है। हमें यहीं पे एक रोक लाना है, हमें थूकना नहीं है, हमें यहाँ अपने आप की सुरक्षा करना है और हमारे साथ में हमारे लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, नेबर्स हैं, उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। थैंक यू। गोविंद पांडे जो हम एनी टाइम आते रहते हैं। अब ये जो आज इतना सोशल काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी इतना अच्छा काम किया है गोविंद पांडे की टीम ने, उनको जितना बोला जाए दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो मैं उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता, जीवन धारा NGO टीम जो है, ये लॉकडाउन में क्या क्या नहीं किए, अपनी ज़िंदगी जान हथेली पर लगा के गोविंद पांडे ने काम किया है। ऐसे गोविंद पांडे मुझे गर्व है।
जय श्री राम, जय समोलिया। जय श्री राम। बताइए आप। है मैं यहीं पे है। है नहीं शायद। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे जीवनधारा संघ के बारे में, अवार्ड फंक्शन के बारे में? सबसे पहले नमस्कार, सभी को आप सबको बधाई। और मेरा परिचय ऐसा है कि हम बबीता सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय पवार साहब की मानी हुई बहन, और हम भारत की कम से कम 6 प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवनधारा संघ का ऐसा है कि गोविंद पांडे ना जो है, जिनका आज जन्मदिन है, सबसे पहले उसे जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। और गोविंद पांडे हमारा छोटा भाई है, उनकी एनजीओ है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं, तो इन्होंने हमें हर समय शुरू से, और हमारे बेटे करण सिंह प्रिंस को उन्होंने यहाँ पे लिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और हम लोग साथ में ही मिलके काम करते हैं। और जीवनधारा संघ को भी हम यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे। मैम, जीवनधारा संघ आज बहुत सोशल भी है, कल गोविंद जी का बर्थडे भी है जी, और काफ़ी एनजीओ और भी हैं, तो किस तरीके का वर्क करते हैं एनजीओ इसलिए? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जीवनधारा संघ के जो गोविंद पांडे हैं, हमारे बेटे करण सिंह प्रिंस और हम लोग जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, और हम लोग काफ़ी सोशल, यानी रियली में सोशल काम होता है। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने एक भी दिन बिना रुके लोगों के यहाँ राशन पहुँचाना, खाना एक अलग जगह बना के वो बड़े बर्तनों में ले जा के लोगों को जहाँ तक खाना नहीं मिल रहा था वहाँ तक ले जा के ये कार्यकाल किया गया है। और इसमें कुछ भी दिखावा नहीं था, कोई शो अप नहीं थी, और सिर्फ एनजीओ ने अपना एक मूलभूत काम करके आगे बढ़े हैं। बच्चों तक खाना पहुंचा है, गरीबों तक कपड़े, इवन हम लोगों ने बहुत जगह कपड़े भी बांटा है, क्योंकि कई बार लोग गरीब जो झोपड़पट्टी के लोगों के पास कपड़े उपड़े थे नहीं, घर के लोग चले गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी जीवनधारा संघ के साथ हम लोगों ने किया है। थैंक यू। हाँ बोलो बोलो। पूछा भाई। हाँ मैम, अभी भी कोविड का काफ़ी कुछ चल रहा है इस तरीके से कि वापस से बहुत सारी अफवाहें भी सुनने में आई जा रही है कि लॉकडाउन वापस लग सकता है या इत्यादि लोग नहीं बरत रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि वो चीज़ होना चाहिए या फिर लोगों को थोड़ा इत्यादि बरतना चाहिए? किस तरीके का आप उनको मैसेज देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली कोरोना जो है ये एक बीमारी और एक वायरस हमारे इंडिया में आया है, ये बहुत सही बात है। और जहाँ रैली होती है वहाँ कोई मास्क नहीं पहनता है, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोरोना पेशेंट नहीं निकल रहे हैं, कोरोना पेशेंट वहाँ पे भी निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना जो है वो बीमारी है, इसमें प्रिकॉशन लेना है। जब तक, जैसे पहले किसी ज़माने में एक महामारी आई थी हमारे भारत में 150 साल पहले, जो चेचक और टीबी का था, उसके जब टीके निकले हैं उसके बाद ही इंसान में ये आया है कि हमारे बच्चों को जब टीका लगाया जाता है उसके बाद वो सेफ़ रहते हैं। ऐसा ही कोरोना न जाने वाला बीमारी है, ये कोरोना हमारे यहाँ रहेगा, क्योंकि ये वायरस है, ये वायरस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही ज़्यादा कोरोना और कहीं नहीं। हाँ, ये है कि सरकार हर जगह अपने अपने जगह से तरीके से आंकड़े छुपा रही हैं, और कोरोना काल में महाराष्ट्र को हाईलाइट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत, ऐसा नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में भी हमारे रिश्तेदार है, राजस्थान में भी है, हर जगह है। अगर हम लोग अपनी फैमिली से बात करते हैं तो कोरोना बहुत ज़्यादा आगे तरीके से बढ़ा हुआ है, वहाँ भी लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए कोरोना में सभी को बोलेंगे कि एज़ इट इज़ जैसा गवर्नमेंट बताती है, अपना हाथ धोना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और किस तरीके से इसका वर्क चल रहा है, तो ज़रा बताइए थोड़ा। जीवनधारा संघ एनजीओ पिछले 5 सालों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इनके साथ इनके कोर कमेटी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पुलिस फोर्स है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं। बेसिकली ये अवार्ड जो हमने रखा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, उसका रीज़न था कि लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में जब लगा, उस वक्त जब लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम फेसेस थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें डेफिनेटली पब्लिसिटी मिली नहीं। उनके पास कुछ ऐसा नाम नहीं था, उनका जैसा फेम नहीं था, बट जो एक्टर्स बड़े थे उन्होंने जितनी मदद की उन्हें मीडिया ने छापा। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, ऐसी कई महिलाएं पुलिस ऑफिसर है जो अपने घर से 3-3, 4-4 महीना कोरोना काल में पुलिस स्टेशन में सोई है। 3-3, 4-4 महीना कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर नहीं गए हैं और उस कोरोना काल में आम इंसानों की, आम नागरिकों की उन्होंने मदद की है। तो वैसे लोग को हमने बुलाया
वैसे लोग को हमने फेलिसिटेट किया, वैसे लोग को हमने अवार्ड दिया। इसमें हर कैटेगरीज है, कई अवार्ड हमने एक्टर्स को दिए, कई अवार्ड हमने एडवोकेट्स को दिए, कई अवार्ड हमने डॉक्टर्स को दिए, पुलिस को दिए, कुछ बिजनेसमैन थे जो सामने आए, कुछ सोशल एक्टर जो मीडिया में काम करते वो थे, कुछ सोशल वर्कर थे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये अवार्ड बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था। सर आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज गोविंद जी का बर्थडे भी है, तो और साथ ही साथ इन्होंने मतलब ये भी एक रखा गया, तो उसका क्या रीज़न था कि उनके बर्थडे वाले दिन ही है सबका? गोविंद जी हमारे एकदम परम मित्रों में से एक है। एक राम लक्ष्मण वाली जोड़ी थी, वैसे हमारी जोड़ी है, और उनका जन्मदिन था। इससे अच्छा उपलक्ष्य मुझे नहीं लगा कि कोई होना चाहिए कि हम किसी को अवार्ड दें या सम्मानित करें, क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, एक बहुत ही कम आयु में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है। हर लाइन में जाकर किसी से भेदभाव ना करते हुए, छोटा बड़ा ना देखते हुए, गोविंद पांडे जी ने जिस हिसाब से काम किया है जीवन धारा के लिए, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बर्थडे भी छोटा पड़ा उनके इस नाम को अवार्ड देते हुए। सर एक्चुअली आप एक खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो सर आने वाले कुछ और टाइम में आपको किस मतलब लोग किस रूप में देख पाएंगे, मतलब किस ओहदे पर देख पाएंगे? मुझे जी हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की, तो बहुत जल्दी डेफिनेटली आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरा जो भी इवेंट रहा है, मेरी जो भी एक्टिविटीज़ रही है, मुझे आप लोग से बहुत प्यार मिला है और आप लोग के थ्रू ही मैं लोगों तक पहुँचा हूँ। तो इस बार भी डेफिनेटली आई बिलीव मैं जो भी करने वाला हूँ, इलेक्शंस आ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा इस इलेक्शन में ही सही, लेकिन या आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि यूथ आए सामने और कुछ नए सोच के साथ राजनीति को एक नया मोड़ दिया जाए। और वही सोचते हुए मैंने कदम रखा दोबारा। मैं लाइन छोड़ चुका था, लेकिन फिर पांडे जी हमारे जीवन धारा संघ लेकर आ गए और उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि भैया युवाओं की फिर से ज़रूरत है। तो मैंने कहा अगर मेरा खुद का एक छोटा भाई जैसा मुझे बोल रहा है तो डेफिनेटली आई शुड कम, और उनसे प्रेरित होकर मैं इसमें आया। मेरे बहुत अच्छे और भी मित्र हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। राजन सिंह है, डेफिनेटली आपके शान है, आपकी लाइन से हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हर लाइन से कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल बहुत जल्दी मैं नज़र आऊँगा कुछ नए चीज़ों को लेते हुए। तो ज़्यादा क्या ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, कोविड के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अभी तो मैंने मास्क पहना नहीं है, तो मैं मास्क के लिए बोल नहीं पाऊँगा लेकिन फिर भी कोविड को बिल्कुल मजाक में ना ले। और होली आ रही है, आप सब से मेरा निवेदन है कि घर पे अपने परिवार के साथ होली मनाएं, और कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी में जाने की। अगर एक साल आपके जीवन से कोई पार्टी चले जाती है उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए इस होली में अगर आप घर वालों से दूर चले जाएंगे जीवन भर के लिए तो लॉस किसका होगा, ये सोचते हुए ये होली को आप बनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। करण सिंह प्रिंस स्पेशली जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड शो फंक्शन रखा, जीवन धारा संघ जो कि एक काफ़ी अच्छा एनजीओ है हु इज़ वर्किंग, मैं आज इसका पार्ट था एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग हियर अवार्ड्स फॉर डिफरेंट एक्सपेक्टीज एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे आई होप कि ऐसा काफ़ी सारे शोज़ हो जहाँ पे और बड़ी चीज़ें कर सकें। मैम आप क्या कहना चाहिए? Actually, I want to say thanks to Karan sir and Govind sir and my coach Mr. Rajiv Singh and also Jeevan Dhara Sangh for giving me this beautiful award. सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी कोविड के रिलेटेड है, तो कोविड के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? See, COVID being not very professionalist, but yes, being a health fitness coach, I want to tell and relate you that guys, take it seriously and future में अगर आपको really इस चीज़ों से उभरना है and we have to come back. गोविंद जी सबसे पहले तो आपको बधाई हो आपके जन्मदिन में। थैंक यू सो मच भाई। सर आज जीवन धारा संघ एनजीओ जो आपका है, तो आज इस रिलेटेड आपने एक अवार्ड फंक्शन भी रखा है जो काफ़ी जिन लोगों ने हेल्प की है तो उनको आपने अवार्ड से नवाजा, तो क्या कहना चाहिए? सर हमारा जो मकसद है अवार्ड फंक्शन का, ना हमारा फिल्म शो होता है, ना तो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना होता है। ऐसा हम सोशल मतलब जो ग्राउंड लेवल का सोशल होता है, जो कोई गूगल पे नहीं मिलता है कुछ, और ना जो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पर जो एक अपने पगार में से 10-20-25 हज़ार रुपये की पगार में से थोड़े बहुत पैसे लोगों के लिए खर्चा करता है, चाहे वो गौशाला के लिए हो, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे अनाथ आश्रम के लिए हो, चाहे वृद्धा आश्रम के लिए हो। और हमारी एनजीओ का सबसे बड़ा जो मकसद है वो हम लोग लावारिस बॉडी पे काम करते हैं। लावारिस बॉडी पे काम करने का मकसद ऐसा है सर कि जो आज तक मतलब
पुलिस वाले जो हमारे कुछ एनजीओ में जुड़े हुए हैं, कोरोना में हो या कोई भी चीज़ों में सबसे पहले पुलिस वाले ही आते हैं। तो पुलिस वालों की वजह से हमने मतलब ये चीज़ें चालू की है। लावारिस बॉडी मतलब हमारी एनजीओ उठाती है, जो कोई भी कास्ट का हो, XYZ कोई भी कास्ट का हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उसी तरीके से हम उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। हमारी एनजीओ के मेंबर्स उसका पैसा पूरा खर्चा उठाते हैं और पूरे एनजीओ के मेंबर्स जाते हैं उस चीज़ों के लिए और प्रॉपर जो भी क्रिया होती है उसी तरीके से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। तो इसीलिए हमारे एनजीओ का तो सबसे बड़ा मकसद ये है। और जो ग्राउंड लेवल पे मतलब सोशल लोग करते हैं, उनको हम साल में कुछ सिलेक्टेड लोगों को, मतलब हाई प्रोफाइल भी नहीं बट जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वैसे लोगों के हम कुछ प्रोफाइल मंगाते हैं और उनको हम अवार्ड देते हैं। तो हमारी एनजीओ का अवार्ड देने का भी जो मकसद हमारी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज होने का मतलब है कि सर कि ये चीज़ें जो भी है मतलब ये समाज सेवा होता है, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जी मीडिया वाले होते हैं। तो सब ना हम लोग 8 कैटेगरी को अवार्ड देते हैं। उसमें हमारी 2 एनजीओ मेंबर्स होते हैं जो मतलब एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो पूरे साल भर काम करता है। डॉक्टर्स, टीचर, स्पोर्ट्स, उसमें मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हम लोग उनको सिलेक्टेड करके, कुछ प्रोफाइल आती है हमारे पास, उसमें सिलेक्टेड करके उनको हम अवार्ड देते हैं। ये हमारा 3rd अवार्ड फंक्शन था। चयन कैसे होता है? चयन प्रक्रिया यस सर, चयन करने का मतलब सर हमारे एनजीओ से कुछ IPS ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं वो जुड़े हैं, कुछ ACP साहब जुड़े, कुछ पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले बहुत एनजीओ में जुड़े हैं और कुछ एज अ डॉक्टर जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो हम जब प्रोफाइल मंगाते हैं ना तो उसमें चेक करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा काम किसने किया, उनकी सोशल मीडिया की चीज़ें देखते हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं, आसपास के लोगों से हम उनकी इंक्वायरी करते हैं कि मतलब रियल में बंदा काम कर रहा है क्या। और हम पॉलिटिशियन को बिल्कुल अवार्ड नहीं देते, क्योंकि पॉलिटिशियन को अवार्ड देने का मतलब होता है कि वो रियल में तो वो तो अपने लिए ही काम करता है, क्योंकि वो पैसे भी खर्चा करता है तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करता है। तो हमारी एनजीओ ना इलेक्शन वालों को सपोर्ट नहीं करती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और हम IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर में से कुछ लोगों से हम पूछते हैं और उनके पास प्रोफाइल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे लोग आए, तो वो या ACP में हमारे कुछ पुलिस वाले होते हैं तो उनसे पूछते हैं। हमारी एनजीओ की कोर कमेटी टीम होती है, उन लोगों को मिलके हम सिलेक्टेड करते हैं। 100 लोगों का अगर हमारे पास नाम आता है, जैसे सोशल में से 100 लोगों का नाम आया तो हम लोग 2 ही जन को चूज़ करते हैं। तो उसमें भी हमें बहुत मतलब तकलीफ़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बट हम चॉइस करते हैं कि वो 2 जन हो जो किसी को बुरा भी लगे, हाई मतलब बहुत अच्छा काम किया हो, उसे हम अवार्ड देते हैं सर। आज कितने अवार्ड किया सर ये इस बार तो अवार्ड के जो हमारे आप पहले तो सिर्फ 16 अवार्ड्स होते थे, बट इस बार 28 अवार्ड्स हुए। इसका रीज़न है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो हम उसी हिसाब से कि कुछ लोगों के लिए अवार्ड बढ़ाए कि लोग नाखुश ना हो, सबको खुशी मिले, जो रियल में काम किया है उनको अवार्ड मिले तो खुश हो। इसलिए सर हम लोगों ने फ़िलहाल तो 28 अवार्ड्स दिए। जी जी मैम, कुछ कहना चाहिए अवार्ड?